Hello, welcome back everyone. This is Kishan Davra from Neurodog, and today we are going to start with our new system that is hematology. And the first topic that we are going to discuss is RBC disorders. So let's just begin. Alright, so let's just start with the first topic that is RBCs, and the first one is embryology. In embryology, you should remember the fetal erythropoiesis that is given here. See within what period of time, what is the developmental stage, whether in yolk sac, in liver, in spleen, bone marrow, what is the week. So I myself found this question, so I can say this is high yield because I got this one question and I didn't know, I didn't remember at that time, and I wasn't sure which is correct. So I thought this wasn't going to be high yield, but it came to be high yield. So I would suggest you guys to learn this. And if you are feeling any difficulty in remembering this, then this diagram is for you. Okay, this diagram is for you. It is visual representation, and visual learners have great memory retention than just reading. So this is important. So try to remember it. Moving ahead, we have blood group, that is ABO classification. This is all that we are learning since 9th or 10th grade and learning in the physiology and anatomy, histology, everywhere. Okay, so I don't think you should go into detail over here. You already have the idea of what is going here. Moving down, we have hemolytic disease of fetus and newborn. So hemolytic disease of fetus and newborn, the two questions that they frequently ask, they are formation of that they frequently ask are the formation of maternal anti-IgG, that is immunoglobulin G. This is the most frequently question that they ask. And the second, they will ask how you will prevent this disease in the further pregnancies. Okay, so this entire topic becomes important just because of these two questions. So make sure you know them properly. Moving down, we have the basic anatomy, and what is there in anatomy over here is a description of all types of cells like RBC, WBC, platelets, and all the basic stuff. Okay, so for this, if you are not sure to read from where to read, you can always go back to the basics of histology. You can read each and every feature given in the book or whatever the resources you are using for histology. I think the book that you have been using was IB Singh, and it's a pretty great book if you have read it properly. Second, you need to review about this classification also, myeloid stem cells, lymphoid stem cells. This will help you in many lymphoma and leukemia and everywhere. So make sure you are strong in the basics. Make sure you know how to identify neutrophils, erythrocytes, thrombocytes, everyone and everything. Okay, so सब कुछ पता हो जाना चाहिए. ये सब हिस्टोलॉजी का पार्ट है. अगर आपकी हिस्टोलॉजी स्ट्रांग नहीं हुई, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक करोगे. सो मेक श्योर यू आर स्ट्रांग इन हिस्टो इन दिस चैप्टर स्पेशली, एंड यू आर थोरो विद द बेसिक. सो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन ओवर हियर इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये सेल्स किसके लिए यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एवरीथिंग ओवर हियर. सो इसमें कुछ भी नया नहीं है. बेसिक को स्ट्रांग करो एंड देन मेटाबॉलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, पैथोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे. ओके, coming to the pathology part में we can see that they have given all the morphology, like कौन सी डिजीज में कौन सी आरबीसी की morphology हो जाती है, like what is the change in the shape, what is the change in the number, what happens not. So everything what they have done is they have given it all together over here. Okay, all the different types of shapes and everything they have given over here. But make sure don't just do this from the starting. First go through the disease, first go through the conditions, and only after that you come back and revise them. Because if you learn them now while doing the disease, you will be confused, you won't be knowing how this happened. So it's always better कि पहले डिजीज को देखो और फिर ये सारे रिवीजन के टाइम ये इमेजेस को देखना. ओके, so I think we will start with our first condition. Before that, you should be knowing the basics of diagnosis of anemia. आपको डायग्नोसिस तो आना ही चाहिए, एंड आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा हाउ यू विल बी क्लासिफाइंग दिस अनीमिया. सो इट डिपेंड्स ऑन एमसीवी वैल्यू. मोस्ट कॉमनली 80 से कम है तो माइक्रोसाइटिक, 80 से 100 है तो नॉर्मोसाइटिक, 100 से ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया तो मोस्ट कॉमनली आर. ओके, तो ये आपका बेसिक है जो आपको आना चाहिए बिफोर यू बिगिन द आरबीसी डिसऑर्डर्स. एंड इफ यू आर कंफ्यूज फ्रॉम वेयर टू स्टडी आरबीसी डिसऑर्डर्स, देखो
स्टेप 1 के लिए अल्टीमेट सोर्स इज BNB. ओके, बोथ एंड बियॉन्ड तो अल्टीमेट है, बट अगर BNB के अलावा आपको मोर डिटेल में पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी मोर इन डिटेल, देन द बेस्ट सोर्स दैट आई यूज, दैट आई सजेस्ट, एंड मुझे इसके अलावा और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट वॉज स्पर्श गुप्ताज वीडियोज, डॉक्टर स्पर्श गुप्ताज वीडियोज. इनका जो हेमैट का पार्ट है, दैट इज very very beautiful. He has explained all the concepts in so detail that अगर आपने वो कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन फॉर द स्टेप 1 लेवल. ओके, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता इज द फैकल्टी ऑफ पैथोलॉजी इन प्रेप लैडर. आई डोंट नो ही इज करंटली देयर और नॉट, बट प्रेप लैडर में इनकी वीडियोज मैंने फॉलो करी थी, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर द हेमाटोलॉजी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. ओके, सो अगर आपके पास टाइम है, यू शुड रियली गो फॉर स्पर्श गुप्ता. अगर नहीं, आपने रॉबिन्स पढ़ी है, देन बोर्ड एंड बियॉन्ड इज इनफ. ओके, इज इनफ. जरूरी नहीं है स्पर्श गुप्ता की वीडियो देखनी है, बट बोर्ड एंड बियॉन्ड जरूरी देखनी है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द बेसिक इन्फो. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट, दैट इज माइक्रोसाइटिक टाइप ऑफ एनीमिया, और उसमें है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. ऑलराइट, देन लेट्स जस्ट बिगिन. द फर्स्ट वन, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. MCV लेस देन 80, ये तो आपको पता ही होगा. डिक्रीज इन आयरन ड्यू टू क्रॉनिक ब्लीडिंग. क्रॉनिक ब्लीडिंग में आपको केस दे देंगे GI लॉस और मेनोरहेजिया. ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ब्लीडिंग नहीं बोलेंगे, आपको कोई क्लिनिकल केस ही देंगे. सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट. माल न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स. ओके, सो एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स में आपके जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है, दैट इज सीलिएक डिजीज हो गई, देन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, वो विपल डिजीज, तो ये सब आपके माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में आ सकते हैं. देन वी हैव GI सर्जरी, दैट इज गैस्ट्रेक्टोमी. सर्जरी करते वक्त कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, सो ऑल दिस कॉजेस आपको दिया जा सकता है. इसके अलावा देयर इज वन मोर कंडीशन, दैट इज टेप वॉर्म इन्फेक्शन. ओके, टेप वॉर्म इन्फेक्शन में भी आपको आइडिया दिखने को मिलती है. आई थिंक दे मस्ट हैव मेंशन्ड ओवर हियर. नहीं, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है. तो टेप वॉर्म, और मोस्ट कॉमनली यू विल बी सीइंग हुक वॉर्म इन्फेक्शन. ये भी मोस्ट कॉमनली आज क्वेश्चन है. ऐसा कौन सा पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसके साथ आपको आइडिया दिखे? सो हुक वॉर्म इज वन ऑफ द कॉज. ओके, सो ये जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, और वॉट एवर टाइप ऑफ एनीमिया दैट यू आर स्टडिंग, one thing that will help you to diagnose is first MCV, and the second one is the lab values, serum iron, ferritin, TIBC, and the last one is फेरिटिन. तो यही सब आपको देखनी है, 4 चीज़ें आपको देखनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया दे आर आस्किंग. ठीक है, हेमैट इज जस्ट लाइक आपने केस पढ़ा, आपने लैब वैल्यूज देखी, डायग्नोस करी. इट विल बी इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू द फीलिंग एज अ फिजिशियन. ओके, सो मेक श्योर हेमैट को आप अच्छे से पढ़ो. काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, काफ़ी इजी. सो अगर आपने लैब वैल्यूज अच्छे से कर ली, यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू स्कोर एवरीथिंग इन हेमैट. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. लैब वैल्यूज में आयरन कम हो जाएगा, TIBC इंक्रीज, फेरेटिन डिक्रीज, एंड ये सब लैब वैल्यूज कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, फॉर दिस आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. सो नेक्स्ट वीक मैं आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो सब समझाऊंगा, एंड 2-3 topics are there, so I will make a video on that for the next week task. Okay, for now we'll just go through what is high yield. So, and yeah, in hematology, one more thing you need to focus on is peripheral smear. Okay, smear जो होते हैं जिसमें RBCs आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखे. So these 2-3 things that you need to be expert while you are studying hematology. आपको लैब वैल्यूज पता हो जानी चाहिए, पेरिफेरल स्मेयर पता हो जाना चाहिए, RBC के जो मॉर्फोलॉजी है डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट होते हैं वो पता हो जाना चाहिए, और मोस्टली ये डिजीज एंजाइम डिफेक्ट पे चलती है या कुछ डेफिशिएंसी पे चलती है. ओके, तो ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं. हेमैट में कुछ ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है. ये दिया आंसर, ये दिया आंसर. ओके, तो लेट्स सी द सिम्टम्स में फटीग तो आपको कॉमन दिया जाएगा. पीका जैसे परसिस्टेंट क्रेविंग एंड कंपल्सिव ईटिंग. ठीक है, मतलब मोस्ट कॉमनली आपको इसमें दिया रहेगा सैंड और आइस. ओके, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा. एंड अनदर वन इज स्पून नेल्स, दैट इज कॉइलॉन्चिया. ये एक फैंसी मेडिकल टर्म है जो आपको पता होना चाहिए. कैन मैनिफेस्ट एज ग्लोसाइटिस, किलोसिस, Plummer-Vinson syndrome, that is triad of IDA, esophageal webs, and dysphagia. I have discussed this in GIT, so you can go back and revise. So that's all for IDA. You need to remember lab values. Peripheral smear में आपको ये दिखाई दिया, माइक्रोसाइटोसिस एंड हाइपोक्रोमेसिया.
सेंट्रल पेलर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आरबीसीज में जो सेंट्रल पेलर होता है वो इसमें, ये जो सेंट्रल पेलर होता है ना, सॉरी नॉट दिस, ये जो सेंट्रल पेलर होता है ये नॉर्मल आरबीसी है, और अगर आप देखोगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तो सेंट्रल पेलर इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू बी डिस्टिंग्विश, और आरबीसी की साइज छोटी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर आईडीए। लेट्स मूव अहेड। वी हैव अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया को हम माइक्रोसाइटिक में, सॉरी नॉट अल्फा थैलेसीमिया, बोथ टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया को हम माइक्रोसाइटिक में कंसिडर करते हैं। सो इसमें भी एमसी वैल्यू आपकी मोस्टली 80 से कम आ जाएगी। ओके, सो थैलेसीमिया क्या है? बेसिकली इट इज हेरिडिटरी डिफेक्ट, इज जेनेटिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे आपको जीन्स का प्रॉब्लम दिया जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया इज नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। बीटा थैलेसीमिया में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो लेट्स जस्ट क्विकली वाइंड अप अल्फा थैलेसीमिया। एज यूजुअल जेनेटिक है, क्रोमोसोम याद रखना है, डिक्रीज इन अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, देयर कैन बी सिस डिलीजन और देयर कैन बी ट्रांस डिलीजन। ये आपको पता होना चाहिए सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। ओके, सो 4 टाइप दिए हुए हैं आपको, 4 टाइप। इसमें से जो टाइप 3 एंड टाइप 4 है इस पे क्वेश्चंस काफी कॉमनली आते हैं। ओके, दैट इज हेमोग्लोबिन एच डिजीज एंड गामा 4 दैट इज बार्च डिजीज। इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। एंड द वन कॉमन केस दैट दे विल बी आस्किंग यू इज हाइड्रोफिटालिस। हाइड्रोफिटालिस अगर दिया है कौन सी आरबीसी डिसऑर्डर के साथ लिंक होगी, आपको बोलना होगा बार्च डिजीज। ओके, अल्फा थैलेसीमिया का पार्ट है। दैट्स इट। मूविंग डाउन टू बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन। सो लेट्स जस्ट सी इट। इसमें आपको पता चलना चाहिए कि पॉइंट म्यूटेशन इन स्प्लाइस साइट, मतलब स्प्लाइसिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। स्प्लाइसिंग जो आपकी बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ जाती है, दैट इज एंड इसमें देखो, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे कहीं से भी, आपने स्पर्श गुप्ता या बीएनबी या कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो ही मस्ट हैव बी बीटा/बीटा प्लस, बीटा/बीटा प्लस, और बीटा/बीटा जीरो। मतलब बीटा प्लस मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ी यू कैन से थोड़ी सी म्यूटेशन हुई है। बीटा जीरो में मतलब सिंथेसिस ही नहीं हुई, म्यूटेशन की वजह से सिंथेसिस ही नहीं हुई है। ओके, तो दैट इज व्हाट नोन एज बीटा जीरो, मतलब एक बीटा चेन बना ही नहीं है। बीटा प्लस में आधी बनी है, आधी ठीक से नहीं बनी। सो ये सारे बेसिक्स है थैलेसीमिया के, आपको जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से इसको रेफर कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी। सो द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हियर इज बीटा थैलेसीमिया मेजर, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड। और इसके सिम्टम्स देख लेते हैं हम। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एंड देन इसमें केस दिया रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया गया है, तो यहाँ पे केस दिया रहेगा। देन देयर कैन बी, बिकॉज ऑफ दिस देयर कैन बी मैरो एक्सपांशन, तो क्रू का स्केल अपीयरेंस होती है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ पार्वोवायरस B19 इंड्यूस एप्लास्टिक क्राइसिस, जो कि आप वायरोलॉजी में पढ़ोगे। तो पार्वोवायरस B19 की जो आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको बताया जाएगा कि थैलेसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, आई मीन थैलेसीमिया के साथ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। ओके, there will be increase in HbF and HbA2. नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज HbA, बट यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से या तो HbF बन जाएगा या तो HbA2 बन जाएगा। HbF जो होता है ये फीटल हीमोग्लोबिन होती है। ओके, फीटल हीमोग्लोबिन होती है। becomes, if it is in children it becomes symptomatic after 6 months. ओके, 6 मंथ तक HbF होता है, और HbF कभी कभी प्रोटेक्टिव फैक्टर एक्ट करता है। सो ये सब आपको पता हो जाना चाहिए। दिस इज जस्ट अ रिविजन गोइंग फॉर यू। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर बीटा थैलेसीमिया। आपको जेनेटिक डिफेक्ट पकड़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस पे क्या डिफेक्ट होगी वो पकड़ना है, एंड क्लिनिकल फीचर्स तो आपको पता ही है। दैट्स इट फॉर बीटा थैलेसीमिया। Moving ahead, we have another type of macrocytic anemia, and in this we come across a condition that is known as lead poisoning. लेड पॉइजनिंग को हम एसोसिएट करेंगे सिरेरोप्लास्टिक अनीमिया। ओके, तो लेड पॉइजनिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके बेसिक्स पे, इसका जो फ्लो चार्ट है उसके बेसिक्स पे फर्स्ट एड में दिया भी हुआ है। लेट्स जस्ट सी इट फॉर वन। ये रहा, ये आपका पूरा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की फ्लो चार्ट है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इसमें आपको बताया गया है कि हीम कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पे लेड एक्ट करेगा और इसको तोड़ेगा। फिर इसके साथ इंटरमिटेंट पोरफायरा भी होती है एक कंडीशन, उसमें भी आपको पता हो जाना चाहिए। सो दिस फ्लो चार्ट इज आई कंसिडर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप इफ यू डू दिस फ्लो चार्ट प्रॉपरली आपकी बहुत सारी कंडीशन सॉल्व आउट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू द लेड पॉइजनिंग के टॉपिक पे आते हैं। तो लेड पॉइजनिंग में हम देखेंगे
कि यहाँ पे किसी एंजाइम डिफेक्ट की वजह से ये होती है। लेट्स जस्ट सी इट क्विकली। लेड इनहिबिट फेरोचेलेटेज एंड एएलए डिहाइड्रेटेज, आपको फ्लो चार्ट पे दिख जाएगा। डिक्रीज इन हिम सिंथेसिस एंड आरबीसी प्रोटोफॉस्फाइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पे केस में क्या आता है, मैं केस आपको बता देता हूँ। क्लिनिकल केस में यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड हाउसेस है, मतलब विंटेज हाउसेस 1950s 1960s और उससे भी पहले। ओके, वहाँ पे आप रह रहे हो, यू हैव अ बेबी विथ यू। ओके, एंड बेबी को क्या होती है, लिक करने की आदत होती है। हर दीवार पे जो भी चीज़ दे दोगे वो लिक करेगा। बेबी विल स्टार्ट लिकिंग द वॉल्स। ओके, वॉल्स पे लिक करने से क्या होगा, वॉल्स पे जो लेड पेंट्स होते हैं, लेड पेंट्स को लिक करेगा, लेड गया बॉडी में, डेफिशिएंसी हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड केस। अनदर केस दैट विल बी आस्क्ड टू यू इज गन शॉट। ओके, गन शॉट, गन्स में जो बुलेट होती है वो काफ़ी लेड बुलेट्स होती है। सो ये दो केसेस है लेड पॉइजनिंग के लिए काफ़ी कॉमनली पूछे जाएंगे। सिम्टम्स देख लेते हैं। लेड लाइन्स ऑन जिंजीवे, इसको बटन लाइन्स भी बोल सकते हैं। मेटाफाइजिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, एनसेफेलोपैथी, देन यू विल फाइंडिंग बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ओके, एज आई टोल्ड यू, इमेजेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग कैसा दिखता है आपको पता होना चाहिए। एब्डोमिनल कॉलिक एंड सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, दैट इज एब्डोमिनल पेन। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हम अभी पढ़ेंगे। एंड ड्रॉप, ब्रिस्ट एंड फुट ड्रॉप, रेडियल नर्व की जो ड्रॉप मिलती है वैसे इसमें भी मिलेगी। ओके, ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट हियर। आई एम नॉट गोइंग इन मेडिसिनल एक्सपेक्ट, बट पूछ लेते हैं स्टेप 1 में। सो देख लेते हैं। चेलाचियन विद चक्किम्बर। चेलाचियन मतलब एक मेटल आयन उसको सराउंड कर लेगी या उसको अटैच कर लेगी, चलाट कर लेगी। ओके, तो दैट इज व्हाट नोन एज चेलाचियन। एक्सपोजर रेट्स इंक्रीज इन ओल्ड हाउसेज 1978 जो मैंने आपको बताया। चिप पेंट। Okay, so that's it for lead poisoning. That's it for lead poisoning. Moving down to sideroblastic anemia. Sideroblastic anemia जेनेटिक है, एक्स लिंक डिफेक्ट है ALA सिंथेज में। लेड पॉइजनिंग में देखो फेरोचेलेटेज और ALA डिहाइड्रेटेज है, बट यहाँ पे ALA सिंथेज की दिक्कत आ रही है। ओके, कॉजेज मोस्ट कॉमन तो आपको एल्कोहल देगा, मोस्ट कॉमन एल्कोहल देगा। सेकंड आपको लेड पॉइजनिंग का केस दे देगा। ओके, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो आपको B6 डेफिशिएंसी के बारे में बोलेगा। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। लैब फाइंडिंग्स, लैब फाइंडिंग इसमें भी आपको पता होना चाहिए। आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी आपको पता हो जाना चाहिए। ओके, दैट्स इट। ट्रीटमेंट में पायरोडॉक्सिन B6 को फैक्टर देते हैं, तो B6 की कमी हो गई तो ALA सिंथेस की कमी हो जाएगी। एवरीथिंग इज लिंक्ड ओवर हियर। ओके, एवरीथिंग इज लिंक्ड ओवर हियर। हेमेटोलॉजी एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की काफ़ी सारी इंपैक्ट्स आएंगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ओके, तो फर्स्ट ईयर में आप कह रहे थे बायोकेमिस्ट्री क्या काम आएगा, बायोकेमिस्ट्री क्या काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा। ओके, कोई पेशेंट आपको पूछेगा तो नहीं, बट आपको लाइक you should be able to explain your patient what exactly is going in your body. Okay, so that's it, sideroblastic anemia फर्स्ट स्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे इमेजेस भी दे रखे हैं लोग ने प्रॉपरली, एंड एट द एंड दे हैव आल्सो गिवन द टेबुलर फॉर्म ऑफ द लैब वैल्यूज। ओके, टेबुलर फॉर्म ऑफ लैब वैल्यूज भी दिया है, सो दैट आपको एक ही जगह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कहीं पे आगे पीछे भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर सिडरोब्लास्टिक अनीमिया। ओके, दैट्स इट फॉर, सॉरी ये थोड़ा चेंज हो गया था, वापस कर लेता हूँ। सो दैट्स इट फॉर सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ये टेबुलर फॉर्म है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो नाउ विल बिगिन विद द मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में मोस्ट कॉमनली दे आस्क इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा जिसमें MCV वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट डन विद मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज द मोस्ट ईजिएस्ट। इसमें कुछ पता लगाना नहीं है, बस they will give you one thing, impaired DNA synthesis, so maturation of nucleus of precursors in bone marrow. Impaired DNA synthesis is your high yield point. पूछ लेंगे कभी कि क्या हो रहा है इसमें, so you will say impaired DNA synthesis. That's it. Okay, so अभी देखते हैं इसमें क्या होता है फाइंडिंग में। RBC मैक्रोसाइटोसिस, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये वर्ड आपको कहीं पे भी आया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, आंख बंद करके मैक्रोसाइटिक एनीमिया लिख दो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लिख दो, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कॉजेज क्या होता है, B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली कॉज है। तो दोनों के कॉजेज के डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी मोस्टली माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, मोस्टली क्रॉनिक एल्कोहलिक जो आते हैं, माल एब्जॉर्प्शन जो कि डाइट में नहीं आ रही है, और ड्रग्स में कॉमनली आज से फिनाइटोइन एंड मीथोट्रैक्सेट। मीथोट्रैक्सेट एंटी ट्यूमर ड्रग्स है, फिनाइटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ओके, सो
इसके लैब वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, इंक्रीज इन होमोसिस्टिन एंड नॉर्मल मिथाइल मेलानिक एसिड। अभी ये कैसे हुआ आपको जाके देखना है, ऑड फैटी चेन सिंथेसिस स्लैश मेटाबॉलिज्म, और ये आप कहाँ देखोगे, बायोकेम। एज आई टोल्ड यू, बायोकेम प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल लिंकिंग विद हेमाटोलॉजी। ओके, वन मोर थिंग, इफ देयर इज अ फोलेट डेफिशिएंसी देयर विल बी नो न्यूरोलॉजिक सिम्टम। न्यूरोलॉजी के कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे, जैसे नमनेस, कोई भी क्रेनियल नर्व की अफेक्ट, फिर पैरालिसिस, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, न्यूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी फोलेट डेफिशिएंसी, वेरेज न्यूरल इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर इन B12 डेफिशिएंसी। तो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फोलेट और B12 में कैसे करेंगे। ओके, तो आइए B12 में देखते हैं। B12 में क्या कॉज होगी, पर्निशियस एनीमिया होती है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर के रिलेटेड होती है। माल एब्जॉर्प्शन इधर भी होगी, क्रॉन डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, GIT में पढ़ा हमने, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, गैस्ट्रेक्टोमी, और यहाँ पे एक नया आपको याद करना होगा, दैट इज फिश टेपवर्म। पैरासिटिक इन्फेक्शन है, B12 कर सकता है। ओके, यहाँ पे लैब वैल्यूज हो जाएगी, इंक्रीज इन होमोसिस्टिन, इंक्रीज इन मिथाइल मेलानिक एसिड, बट यहाँ पे ऊपर जो था वहाँ पे नॉर्मल मिथाइल मेलानिक एसिड था। ओके, सो और हाँ, यहाँ पे न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स दिखेंगे। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं देख सकते हैं, रिवर्सिबल डिमेंशिया, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, दैट इज SCID जो आप पढ़ते हो, NR में पढ़ा होगा, स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स में पढ़ा होगा। देन स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, डॉर्सल कॉलम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेगी। ओके, folate supplementation in B12 deficiency can correct the anemia but worsens the neurology। तो इसमें ऐसे नहीं चलेगा कि फोलेट दे दी तो ठीक हो जाएगी, न्यूरोलॉजी के सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है। ओके, स्किलिंग टेस्ट आपको पता हो जानी चाहिए कि कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड अनीमिया सेकेंडरी टू इनसफिशिएंट इंटेक may take several years to develop due to liver's ability to store B12। ठीक है, मतलब B12 की अगर डिफिशियंसी हो रही है न्यूट्रिशन में तो उसको काफ़ी साल लग जाते हैं, क्योंकि लीवर के पास ऑलरेडी B12 की स्टोरेज है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अनदर थिंग इज ओरोटिक एसिडूरिया, वेरी अंडररेटेड। दिस टॉपिक इज वेरी अंडररेटेड, बट क्वेश्चन आएगा, मुझे आया था, सो आई कंसीडर दिस एज हाई यील्ड। मुझे क्वेश्चन आया था ओरोटिक एसिडूरिया का। सो लेट्स जस्ट सी क्या होता है, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट ओरोटिक एसिड टू UMP। अभी UMP आप कहाँ देखोगे, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। ओके, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, अगेन लिंकिंग बैक टू योर बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म जहाँ के DNA RNA सिंथेसिस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा। सो बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन UMP सिंथेस, एंजाइमल डिफेक्ट है, ऑटोजोमल रिसेसिव, सो सेम ही चीज़ें होगी। ओके, नो हाइपर एमोनिया, हाइपर एमोनिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिशिएंसी के साथ आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो, एंड दैट इज ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बाइलामिनेज डेफिशिएंसी। ओके, तो ये जब भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। सो फिलहाल आपको याद रखना है, डायग्नोसिस क्या होगा, ओरोटिक एसिड इन यूरिन। ओके, so that's it for a macrocytic anemia and these three you need to go through. So coming to our last part of the anemia, that is normocytic anemia। और normocytic anemia में क्या होता है, MCV आपकी हो जाएगी 80 से 100 के बीच में। ओके, ना नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में हीमोलाइटिक एनीमिया का कॉन्सेप्ट आता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में आपकी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो हीमोग्लोबिन की कुछ दिक्कतें हो रही है। ओके, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, एज ए रिजल्ट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आपके बॉडी में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, आपके ब्लड में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं। देयर विल बी इंक्रीज इन बिलिरुबिन। ओके, फिर हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चेंजेस आती है। LDH इंक्रीज हो जाएगी। ओके, पिगमेंट स्टोन्स गॉल स्टोन्स बन जाएंगे। ओके, तो ये सारी एक पैथोफिजियोलॉजी है। अगर आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर लूंगा, इसका जो बेसिक्स है। ओके, फिलहाल हम यहाँ बेसिक्स के लिए नहीं है, फिलहाल वी आर जस्ट हियर फॉर अ हायर स्टफ दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो नॉर्मोसाइटिक के लिए जो आएगा आपको उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया का कॉन्सेप्ट को लाना है, और हीमोलाइटिक एनीमिया का कॉन्सेप्ट में आप अगर ला रहे हो तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए, इंक्रीज इन LDH, रेटिकुलोसाइट्स, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, पिगमेंटेड गॉलस्टोन एंड न्यूरोबिलिनोजन इन यूरिन। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए कि अगर ये सब हाई दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट हीमोलाइटिक एनीमिया, एंड फॉर श्योर MCV इसका 80 से 100 के बीच में रहेगा। ओके, सो हीमोलाइटिक एनीमिया है इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर, दो जगह हो सकती है। इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, एक्स्ट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर। सिंपल लॉजिक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हेप्टोग्लोबिन कम हो रहा है, स्किस्टोसाइट दिख रहा है, मैक्रोफेज स्प्लीन किस में क्या हो रहा है आपको ये पता हो जाना चाहिए। बेस्ड ऑन दिस आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि इंट्रावेस्कुलर है या एक्स्ट्रावेस्कुलर। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपने एक बार पढ़ लिया
दिस इज गोइंग टू बी डैमेज। ओके, तो चलिए फर्स्ट टाइप करते हैं नॉन हीमोलाइटिक नॉर्मोसाइटिक अनीमिया, जो कि हीमोलाइटिक नहीं होता है, हीमोलाइसिस नहीं होता है इसमें, तो उसके बारे में करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एओसीडी, दैट इज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, शॉर्ट टर्म आप दे सकते हो एओसीडी। एओसीडी में आपको लैब वैल्यूज आपको डिफरेंशिएट करा देगी माइक्रोसाइटिक से, आईडीए से, सिड्रोब्लास्टिक से डिफरेंशिएट करा देगी। एओसीडी मतलब क्या कि क्रॉनिक डिजीज, मतलब आपकी बॉडी में पहले से कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है और उसकी वजह से या तो बोन मैरो पे अफेक्ट हो रहा है या तो लीवर पे अफेक्ट हो रहा है। लीवर पे अफेक्ट करेगा तो ट्रांसफरिन है, हेप्सिडिन है, ये सारी जो चीज़ें होगी उस पर अफेक्ट करेगी और एज ए रिजल्ट अनीमिया हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है कि एओसीडी को हम माइक्रोसाइटिक में भी कंसिडर करेंगे और नॉर्मोसाइटिक में भी कंसिडर करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द रीजन वेयर इट इज गोइंग टू अकर। ओके, बोन मैरो पे अफेक्ट किया तो आई थिंक वो जाएगा सीधा, बताओ किस पे जाएगा। चलो दो ऑप्शन देते हैं, बोन मैरो पे किया या तो लिवर पे किया। बोन मैरो पे किया तो किधर जाएगा और लिवर पे किया तो किधर जाएगा, मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आंसर बोलेगा उसको मैं एक स्पेशल प्राइज दूंगा। ओके, सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, बोन मैरो और लिवर का मुझे आंसर बताओ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। सो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन्फ्लेमेशन दैट इज इंटरलूकिन 6, हेप्सिडिन को बढ़ा देगा, हेप्सिडिन का फंक्शन आपको आना चाहिए, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ आयरन, अनीमिया हो गई, आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो, और कंडीशन जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो भी हो गए वो सब आपको पता होना चाहिए। सो लैब वैल्यूज एंड क्रॉनिक डिजीज का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, ये हो जाएगा। ओके, फिर आता है ए प्लास्टिक अनीमिया पे। ए प्लास्टिक अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर आप कुछ भी याद नहीं रखोगे ना तो भी आप पता कर पाओगे, क्योंकि ए प्लास्टिक अनीमिया में आपको ये इमेज हमेशा देंगे और जब भी आपको वाइट वाइट फैट ग्लोब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर आई मीन स्लाइड दिखता है, ए प्लास्टिक अनीमिया कर दो आंख बंद करके। ओके, काफ़ी हाई यील्ड है, मुझे भी ये क्वेश्चन आया था, तो यू नीड टू डू इट। कॉजेज दिए हुए हैं, फैनकॉनी एनीमिया को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है फैनकॉनी डिजीज के साथ। फैनकॉनी एनीमिया इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो वही इसमें आप फीचर्स देख लेते हैं। पैनसाइटोपिनिया, ईपीओ इंक्रीज हो जाएगा, सारे सब कुछ सब सारे सेल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि देखो फाइब्रेट हो रही है, फैट ग्लोब्यूल से फिल्ट्रेट बन रही है, सो बोन मैरो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी सेल्स नहीं बनेगा इसमें। ओके, नॉर्मल सेल मॉर्फोलॉजी बट हाइपोसेलुलर बोन मैरो विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन, ये जो है आइकनिक फीचर है। ठीक है, सिम्टम्स आपको सबके कॉमन मिल जाएंगे, सबके आरबीसीज कम, डब्ल्यूबीसीज कम, प्लेटलेट्स कम, सबके मिल जाएंगे आपको। ओके, so that's it for aplastic anemia. So let's start with the next, that is intrinsic hemolytic anemia. Intrinsic means RBC के अंदर हो रही है, extrinsic means RBC के बाहर हो रही है। hemolytic anemia से पढ़ेंगे, जो AOCD और aplastic था ये नॉन हीमोलाइटिक है, अभी जो हम पढ़ेंगे ये हीमोलाइटिक हो जाएगी। ओके, तो फटाफट निपटा लेते हैं इसको भी। फर्स्ट वन, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस आपको इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट याद रखनी है और कौन सी एंजाइम में दिक्कत आ रही है वो आपको याद रखनी है। तो डिफेक्ट इन प्रोटीन इंटरेक्टिंग विद आरबीसी मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन्स होती है वो आरबीसी के शेप को फ्लेक्सिबिलिटी करती है ताकि ब्लड वेसल्स को पास कर सके। ठीक है, कुछ कैपिलरीज की साइज बहुत छोटी होती है, आरबीसी से भी छोटी, तो उसमें भी आरबीसी को तो जाना पड़ेगा ना। ओके, तो ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बट दिस प्रोटीन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली ओवर हियर, सो एज अ रिजल्ट डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड the shape of RBC will change, that is what known as hereditary spherocytosis. Okay, so ankyrin, BAN3 protein, 4.2 spectrin, नो सेंट्रल पेलर, आरबीसी में कोई सेंट्रल पेलर नहीं होगी, पूरी रेड हो जाएगी और स्पीयर शेप में हो जाएगी। नॉर्मली शेप क्या होती है, बाइकॉन्केव शेप होती है, बट यहाँ पे पूरी स्पीयर हो जाएगी। वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप लैब वैल्यूज देखते हो, जब भी आप ब्लड रिपोर्ट देखते हो, अगर आपको सब में मिलेगा MCHC या तो नॉर्मल रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, बट हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस एक इकलौती ऐसी डिजीज है जिसमें MCHC इंक्रीज मिलेगा। ओके, तो MCHC इंक्रीज है, स्ट्रेट अवे गो फॉर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। सिम्टम्स में स्प्लीनोमेगाली, पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स, एप्लास्टिक क्राइसिस, और इसके अलावा जो हमने हीमोलाइटिक अनीमिया में देखा हुआ है, LDH इंक्रीज, एप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तो चलेगी। ओके, ये सारी चीज़ें तो हीमोलाइटिक अनीमिया का फंडा है, बट इसमें हम ये केस पढ़ रहे हैं हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, तो इसमें स्पेशली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लैब में देखोगे मीन फ्लोरेसेंस ऑफ आरबीसीज इन इओसिन, दैट इज EMA बाइंडिंग टेस्ट पता होनी चाहिए। इंक्रीज इन फैसिलिटी इन ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट, आरबीसी में NaCl डाल दिया, स्वेलअप हो रही है या नॉर्मल रह रही है, ये आपको मतलब ये होती है एक टेस्ट, फैसिलिटी टेस्ट।
एंड नॉर्मल टू डिक्रीज इन एमसीवी विद एबेंडेंस ऑफ आरबीसी। ट्रीटमेंट रहेगा स्प्लीनेक्टोमी, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली हो रही है, वहाँ पे सारे डेड आरबीसी जा रहे हैं, इमेच्योर आरबीसी की कलेक्शन हो रही है, स्प्लीन की साइज बढ़ रही है, तो स्प्लीन को निकाल दोगे तो ही पेशेंट बच पाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। मूविंग डाउन, वी हैव पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इसको शॉर्ट टर्म देते हैं पीएनएच, काफ़ी कॉमन है। एंड लेट्स सी क्या होता है इसमें इंक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, कॉम्प्लीमेंट की वजह से होती है। इम्पेयर जीपीआई एंकर सिंथेसिस फॉर डीएएफ, डीएएफ जो अपनी एपोप्टोसिस में पढ़ा होगा, डीएएफ CD55 ये सारे एपोप्टोसिस में पढ़ा है। होता क्या है, जीपीआई जो होती है वो एक प्रोटीन को एंकर करके आरबीसी के मेम्ब्रेन को रहती है, जो प्रोटेक्ट करती है उसको हीमोलाइसिस से। ओके, बट यहाँ पे जीपीआई की जो प्रोटीन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एज ए रिजल्ट आरबीसी को प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव नहीं मिलता है और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट नोन एज हीमोलाइसिस। सिंपल सा बेसिक पैथोलॉजी एंड बायोकेमिकल फंडा। ओके, सो मूविंग डाउन, कुम्भ नेगेटिव रहेगा और इसमें पैनसाइटोपिनिया, वेनस थ्रोम्बोसिस। एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से आप पीएनएच को एक चुटकी में डायग्नोसिस करोगे, दैट इज पिंक रेड यूरिन इन द मॉर्निंग। पिंक रेड यूरिन इन द मॉर्निंग, स्ट्रेट अवे गो फॉर पीएनएच। ओके, आपको यूरिन का कलर भी दिखा देंगे, डार्क रेडिश कलर का दिखा देंगे, दैट इज व्हाट नोन एज पीएनएच। ओके, तो लैब में CD55 59, ओके, तो ये इसकी डेफिशिएंसी होगी जो यहाँ पे हमने पढ़ाई है, देखिए एक्सीलरेटिंग फैक्टर वाले का। सो दैट्स इट फॉर पीएनएच, इजी टू आइडेंटिफाई। Moving down, we have G6PD deficiency, one of the very most high yield। यूवल में इसके 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, G6PD डेफिशिएंसी, और G6PD डेफिशिएंसी का भी बेसिक्स आपको जाएगा बायोकेमिस्ट्री में। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव G6PD डिफेक्ट है, रिड्यूस ग्लूटाथायोन, इंक्रीज इन आरबीसी सब्ससेप्टिबिलिटी टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सब बायोकेमिस्ट्री। सो सल्फा ड्रग लेंगे, अगर पेशेंट की हिस्ट्री में सल्फा ड्रग दिया हुआ है तो ये हो सकता है। फावा बीन्स एक टाइप का बीन्स है, अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो ये हो सकता है। एंटी मलेरियल, मलेरिया हुआ हो, एंटी ट्रीटमेंट पे है तो ये हो सकता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, G6PD डेफिशिएंसी अगर आप इटियोलॉजिकल दैट इज जियोग्राफिक टर्म्स के हिसाब से आप देखोगे तो ये मोस्टली मेडिटेरेनियन रीजन्स में दिया जाता है। फ्रांस, इटली, टर्की, ये सारी कंट्रीज है। मेडिटेरेनियन सी के अलावा आई मीन अराउंड जो रीजन कंट्रीज है उसमें काफ़ी लाइक हाई इंसिडेंस पाया गया है। ओके, ये आपको बीएनबी में सब बताया हुआ है अच्छे से, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो बैक पेन होगा, हीमोग्लोबिनूरिया आफ्टर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यहाँ पे आपको हेंज बॉडीज एंड बाइट सेल्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और स्लाइड जो है उस पर मैं अभी आपको डिस्कस के कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो आपको याद रखना ही है, मैंने पहले ही कह दिया। हर एक कंडीशन में कोई ना कोई पेरिफेरल स्मेल होगी, आपको देखनी है। हेंज बॉडीज है, बाइट सेल्स है, फिर डेक्रोसाइट्स है, फिर टीयर ड्रॉप सेल, एक ही बात होती है डेक्रोसाइट्स, फिर स्पिरोसाइट्स होती है, ये सब कुछ आपको देखना है। फिर बेसोफिलिक स्टेपलिंग, सिरोब्लास्ट, ये सब आपको देखना है। ओके, मूविंग डाउन, पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, बट एक क्वेश्चन यूएल में है, तो ये आप जब भी रेस्पिरेटरी पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तभी आपको ये समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जाना पड़ेगा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट में। कमिंग टू द वन ऑफ द बिगेस्ट, सिकल सेल अनीमिया, ये इमेज को गांठ बांध लो, सिकल सेल अनीमिया। अगर ऐसे आरबीसी दिख रहे हैं स्ट्रेट अवे सिकल सेल अनीमिया मार्क करो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन, सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, ये तो हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ ही रहे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैथोजेनेसिस, लो O2, हाई एल्टीट्यूड और एसिडोसिस प्रेसिपिटेट सिकलिंग। ठीक है, यूवल में क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, यूवल में क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, यही सारी कंडीशन दे दी है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, यही सारी कंडीशन है। ठीक है, मार्क कर दो, यूवल में आया है, पक्का एक क्वेश्चन आया, मेरे गलत हुआ तो मुझे याद है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया, वेसो-ऑक्लूसिव डिजीज। न्यूबॉर्न्स आर इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक, एज आई टोल्ड यू, बीटा थैलेसीमिया में भी HbF प्रोटेक्टिव फीचर होती है कोई भी बॉडी में, न्यूबॉर्न्स में। ओके, सो एसिम्प्टोमेटिक होंगे क्योंकि 6 महीने तक HbF की लेवल हाई होती है, उसके बाद ही सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सिकल सेल डिजीज में HbH फॉर्म होती है। ओके, HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, बट सिकल सेल डिजीज में HbH फॉर्म होती है, और जो फीटल होंगे उसमें तो HbF ही रहेगा। ओके, सो देखते हैं अभी क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसमें। सिकल सेल का क्रिस्चियन शेप, ये हमने बना दिया है यहाँ पे। क्रू कट हमें थैलेसीमिया में भी मिला था, बीटा थैलेसीमिया में भी मिला था, यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज।
कॉम्प्लिकेशंस एक बार देख लेते हैं. ए प्लास्टिक क्राइसिस, ट्रांजिएंट अरेस्ट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस ड्यू टू पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन. सॉरी, थोड़ा वापस कर लेते हैं. या ए प्लास्टिक क्राइसिस ट्रांजिएंट अरेस्ट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस ड्यू टू पार्वोवायरस B19. इधर भी पार्वोवायरस B19 का इश्यू है. ओके. ऑटोस्प्लेनेक्टोमी, हॉवेल जॉली बॉडीज. अनदर पेरिफेरल स्मेयर दैट यू नीड टू रिमेंबर. स्प्लेनिक इन्फार्क्ट, साल्मोनेला, ऑस्टियोमाइलाइटिस. एक क्वेश्चन कॉमन रहता है माइक्रोबायो में, कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ऑस्टियोमाइलाइटिस. तो इसमें कॉमन क्या रहेगा? साल्मोनेला कॉमन होती है. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रही है तो साल्मोनेला इज द मोस्ट कॉमन, ये याद रखना. फिर हम जाएंगे वैसे ऑक्लूसिव क्राइसिस में. इसमें क्या क्या होती है? डैक्टिलाइटिस, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट. प्रायापिज्म क्या होती है? पेनफुल इरेक्शन, दे आर प्रायापिज्म. ओके. चेस्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत आ रही है बच्चे को. फिर पल्मोनरी इंटरेस्ट ऑन CXR, जो तो इसका डिस्ट्रेस का सिम्टम है. एवास्कुलर नेक्रोसिस बोनी डिफेक्ट है. हिप जॉइंट जो होती है ना, वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो जाती है ऑक्सीजन की कमी पे. ओके. किडनी में भी प्रॉब्लम आएगी, उसको हम कंडीशन में बोलेंगे रेनल पैपिलरी नेक्रोसिस की एक कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया. तो जब भी हम रेनल पढ़ेंगे आपको याद रखना है. तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी सिकल सेल डिजीज में. लैब वैल्यूज मैंने बता दिया है. HbF एंड HbS इंक्रीज हो जाएगी, HbA कम हो जाएगी. HbA देखिए नॉर्मल है. HbA2 बीटा थैलेसीमिया में इंक्रीज हो जाएगी. ओके. सो this is how you are supposed to distinguish various conditions and get your anemia concept strong. I would highly recommend जहाँ बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स है वो आप करें साथ में. ओके. मूविंग अहेड, द लास्ट पेज फॉर टुडेज वीडियो. एक्सट्रिंसिक हिमोलाइटिक एनीमिया, जो कि आरबीसी मेम्ब्रेन, जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है उसके बाहर कुछ दिक्कत हो रही है. ओके. सो क्विकली लेट्स जस्ट सी देम. ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है AIHA, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया. ओके. सो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है. इसके दो टाइप्स होते हैं, वार्म एंड कोल्ड. वार्म में आपको याद रखना है कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, और कोल्ड में आपको याद रखना है कौन सी एंटीबॉडी रहेगी. वार्म दैट इज IgG, गोवा से याद रख सकते हो, और कोल्ड में IgM, मनाली से याद रख सकते हो. ठीक है. दैट्स इट. ओके. इसमें आपको साथ में कुछ कंडीशन दे देते हैं कभी कभी, तो वो भी देख लो. ये CLL माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया इन्फेक्शन, इधर भी SLE CLL. वैसे तो आपको इम्यूनोग्लोबिन दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको डिस्टिंग्विश करनी है वेदर इट इज वार्म, वेदर इट इज कोल्ड. ओके. स्पेरोसाइट्स एंड एग्लूटिनेटेड आरबीसीज ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देख लो. एग्लूटिनेटेड आरबीसी का पूरा क्लम्पिंग हो रहा है. ओके. तो चलो आगे आते हैं. यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है. इधर शायद आगे दिया होता 2020 एडिशन में, तो यहाँ पे ही दिया है. सो कुम्भ टेस्ट जो रहती है, आपको कुम्भ टेस्ट पता होनी चाहिए. ओके. कुम्भ टेस्ट पता होनी चाहिए. कुम्भ टेस्ट पॉजिटिव है तो AIHA हो सकती है. ओके. कुम्भ टेस्ट. सेकेंड वन इज माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया. इसको हम बोलते हैं माहा. RBCs are damaged when passing through obstructed और narrowed vessels. पतली नैरो वेसल होगी या तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई रहेगी, यानी कोई क्लॉट फॉर्म हो गया रहेगा, या ऑब्स्ट्रक्ट हो गई रहेगी, या कंस्ट्रिक्ट हो गई रहेगी, तो RBCs पास कैटेगरी डैमेज हो सकता है. दैट इज व्हाट नोन एज माहा. स्किस्टोसाइट्स आपको पता होना चाहिए स्किस्टोसाइट्स कैसे दिखते हैं. दिस इज इन पेरिफेरल स्मेयर. ओके. इट कैन ऑल्सो बी सीन अलॉन्ग विद DIC, जो कि प्लेटलेट डिसऑर्डर में देखेंगे हम. TTP-HUH प्लेटलेट डिसऑर्डर में देखेंगे. SLE एंड हेल्थ सिंड्रोम, दैट इज गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ओके. मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट इज मैक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया. एंड मैक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया में आपको केस दिया जाएगा, सिंपल केस दिया जाएगा. व्हाट इज दैट केस? प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स एंड एओर्टिक स्टेनोसिस. प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व आपको याद रखने हैं. एंड अलॉन्ग विद द यूज ऑफ प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, इफ दे से कि देयर इज एन अनीमिया, स्किस्टोसाइट, that's your diagnosis. Okay. Simple. स्किस्टोसाइट दिखेगा. Okay. So I think we have covered all the RBC disorders, और ये सारे आपको like you should be knowing ये डिसऑर्डर में लैब वैल्यूज क्या है, ये डिसऑर्डर में क्या होगा, वो डिसऑर्डर में इमेज क्या होगी, पेरिफेरल स्मेयर क्या होगा, कौन सा एंजाइम डिफेक्ट एंड ऑल दो स्टफ. दैट्स ऑल द बेसिक्स ऑफ हेमेटोलॉजी. दैट्स ऑल. और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आपका बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके पेरिफेरल स्मेयर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी लैब वैल्यू स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एज वेल एज आपकी इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस
स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. मतलब आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि क्या हो रहा है. लैब वैल्यूज देख के पता चल जाना है कि क्या हो रहा है. दैट इज द ओनली वे हिमैट इज. एंड हिमैट में भी आरबीसी इज द ओनली थिंग दैट विल रिक्वायर दिस लॉजिक एंड इंटेलिजेंस. ओके, बाकी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में इतना कुछ दिमाग नहीं लगने वाला. आरबीसी इज द ओनली थिंग. ओके, so I hope I have covered covered everything that is important from the step 1 point of view. ये वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है, बिकॉज इट वॉज नीडेड ओवर हियर. ओके, so if you have any doubt, mention down in the comment, and the next video will be based on WBC and platelets, and after that I will make a separate video for hematology covering all the important topics, mechanism. Okay, till then, take care, study hard, and good luck.